क्यों नहीं आ रही है? हमको आइडिया फ्लेक्स का सामने ही है पहला उसमें चलो आया होमवर्क आया कल मैं आपको मैसेज किया मैंने कोई और ही विशाल सर को मैसेज कर दिया उनको मैसेज करके उनके साथ कॉल पे बात किया चीज करना है कोई और उनके सीधा 12 बजे आएंगे अभी घर पे जाके होमवर्क आया 200 दोनों आया कि नहीं आंसर्स बोल रहे एक आई थिंक था सम नंबर आपका 14 था ना 14 और 16 क्या आ रहा है 14 का आंसर 2 दूसरा आंसर क्या आया बराबर है चलो दैट इज फॉर 14 23 का दो के साथ 10-20 रुपया ऊपर नीचे आएगा 10-20 रुपया प्लस माइनस जो राउंड ऑफ आएगा बाकी आंसर सेम ही आएगा देखो ये बोलो ना इसमें क्या है 1,80,000 पीछे संभाल ना फोन गिरा दिया फिलिंग गया जूम आउट ड्रास्टिक है चलो 20% 150 कितने आ जाए ऐसा इफ इट इज 16.66 and 16 उसमें पॉइंट में थोड़ा गड़बड़ आता है 25% 14 20% 1 you get the same answer चलो see last class we started with reconciliation so what is reconciliation listen प्रॉब्लम क्या होता है कि समटाइम्स
ये पीरियोडिक इन्वेंट्री में होता है. कहाँ होता है? Periodic inventory system. Research. Under periodic inventory system, what happens? The stock taking, physical counting करना है ना जो stock का, वो कब करना होता है normally? When do you count the stock? Your end. That counting must happen on your end. Okay, it should. But due to some unavoidable reasons, maybe it happens that you might count the stock either before the year end or after the year end. That might be an issue sometimes. बीमारी आ गई या कुछ पॉसिबल नहीं है आपको क्लोज करना ऑपरेशंस, या जो काउंटिंग वाला बंदा है वो अवेलेबल नहीं है, whatever it is. Some unavoidable reason you are not able to calculate the stock on your end. So what you do, either prepone it or postpone it. Either you count the stock before the year end or you count the stock after the year end. Now the problem is you have the stock, but it is not on your end. Either pre-year end or post-year end. From that stock you have to calculate the year ending ka stock, number one. Number two, that year ending ka stock which you are putting in final accounts, it must be physical stock or it must be ownership stock. Ownership stock होना चाहिए. मतलब फिजिकली भले गुड्स अपने पास हो, हम ओनर नहीं है तो निकाल देना है, और फिजिकली भले ही सामने वाले के पास हो लेकिन हम ओनर है तो ऐड करना है, तो ओनरशिप स्टॉक पे जाना है. इसके लिए हमने दो सिंपल क्वेश्चन बना के रखे हैं रिकंसिलिएशन के. क्या है? फर्स्ट वन, आर यू द ओनर ऑफ द गुड्स ऑन योर एंड? आर यू द ओनर ऑफ द गुड्स ऑन योर एंड? नंबर टू, आर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑन द डेट ऑफ स्टॉक टेकिंग? Owner on your end and physical stock in stock taking. If the answer to both the question is yes, do nothing. Why are you doing nothing? Because वो physical में भी है और आप owner भी हो. If the answer to both the question is no, do nothing. मतलब आप owner भी नहीं हो और physical stock में भी नहीं है तो भी tension नहीं है. What is the answer to first question is yes, आप owner हैं लेकिन physical stock में नहीं है तो आप add करोगे क्योंकि आपको belong करता है. And what is the answer is, first question is no, आप ओनर नहीं हो, फिजिकल में पड़ा है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ओनर नहीं है. बात समझ में आई? तो उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन किए थे, आई थिंक एक दो. मैं थोड़े उसी के डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन पे जाते हैं. All of you look at sum number 22, page 147. Page 147, sum number 22. देखो, page 147, sum number 22. देखो ध्यान से. क्या दिया है? 22nd sum. Determine the value of stock to be taken in the balance sheet as on 31st March. From the following information, the stock was physically verified on 23rd March 01 and was valued at 6 lakhs. The stock was verified on 23rd March 01. Physical stock as on 23rd March at 6 lakhs. स्टॉक टेकिंग का डेट से ही पता चल रहा है कि भाई टाइम पे नहीं है, टाइम से पहले था. ठीक है, आपने जो है कब कर लिया काउंट? 23rd मार्च को कर लिया. ठीक है ना? Between 23rd March and 31st March 01, the following transaction had taken place. The first one, purchases were 50,000 of these. अब इसमें ध्यान क्या रखने का है? Purchase of 50,000 of these goods worth 20,000 were delivered on 5th April. देखो यहाँ पर है ना, कंपनी का पॉलिसी मैटर करता है. व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ डिलीवरी एंड इनवॉइस? सुन लो, कभी कभी क्या होता है, कंपनी फॉलोज इनवॉइस का पॉलिसी. व्हाट इट फॉलोज?
इनवॉइस पॉलिसी। इनवॉइस पॉलिसी में क्या होता है कि अगर बिल आएगा तो ही परचेज रिकॉर्ड होगा इनवॉइस बेसिस। माल आए, माल लेट आए, माल पहले आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बिल आएगा तभी परचेज रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 99% है ना बिल और गुड्स साथ में आता है और 99% बिल और गुड्स साथ में जाते हैं। तो कुछ दिया नहीं तो आप वही अज्यूम करते हो। कभी कभी अलग से देगा, जैसे कि यहाँ पे परचेजेस वर 50,000 बट आउट ऑफ विच गुड्स ऑफ 20,000 में डिलीवर्ड ऑन 5th of April। तो यहाँ पे परचेज पहले डिलीवरी बाद में, मतलब परचेज पहले मतलब इनवॉइस पहले और डिलीवरी बाद में। तो कंपनी का पॉलिसी होता है, पॉलिसी क्या होता है, कभी कोई कंपनी इनवॉइस बेसिस पे करता है, मतलब इनवॉइस आएगा तभी रिकॉर्ड करेगा, माल आगे पीछे हम परचेज रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो उससे पता क्या चलता है, ओनरशिप। अगर इनवॉइस आया तो वो ओनर बन जाता है। कभी कभी कोई कंपनी फिजिकल स्टॉक पे काम करता है, मतलब इनवॉइस इसका ठिकाना नहीं है तो वो फिजिकल स्टॉक पे काम करता है, मतलब माल आ गया परचेज रिकॉर्ड कर दो, माल आ गया परचेज रिकॉर्ड कर दो, माल चला गया सेल्स रिकॉर्ड कर दो। कोई इनवॉइस पे करता है, वो क्या बोलता है, इनवॉइस आया परचेज रिकॉर्ड करो, इनवॉइस गया सेल्स रिकॉर्ड करो, माल आगे पीछे गया हमको टेंशन नहीं है। कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे करता है कि माल या इनवॉइस जो पहले आए हम परचेज रिकॉर्ड कर देंगे, या माल या इनवॉइस जो पहले जाए हम सेल्स रिकॉर्ड कर देंगे। तो ऐसे अलग अलग पॉलिसी होती है कंपनी की। तो आपको क्या अज्यूम करना है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन व्हाट डू यू अज्यूम, कौन सी पॉलिसी है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नॉट इनवॉइस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की पॉलिसी का मतलब है कि पहले इनवॉइस या माल जो भी पहले आए आप क्या रिकॉर्ड कर दो, परचेज। क्या रिकॉर्ड कर दो, परचेज। परचेज रिकॉर्ड करने का मतलब आप ओनर बन गए, आप ओनर बन गए। सुना क्या बोला, माल या इनवॉइस जो पहला आए तो आप ओनर बन गए, और माल या इनवॉइस जो पहले जाए आप ओनर से हटे, यू आर नो मोर द ओनर, आपका सेल हो गया। समझा दोनों का। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस मतलब जो पहला हुआ वो, जो पहला हुआ वो। अगर माल और इनवॉइस जो पहला आया यू बिकम द ओनर, या फिर माल या इनवॉइस जो पहले गया यू लूज द ओनरशिप, इट बिकम्स योर इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फो। ओके, इधर मैं वही पकड़ के चल रहा हूं कि माल या इनवॉइस जो पहला आया उसके हिसाब से परचेज और सेल रिकॉर्ड होने वाला है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो पढ़ो इधर क्या दिया, परचेज ऑफ 50,000 आउट ऑफ विच गुड्स ऑफ 20,000 were delivered on 5th of April। तो मैं ऐसा लिखेगा परचेज ऑफ 50,000, ओके, इसको मैं अलग कर देता हूं 30,000 और 20,000, ओके। अब ये 30,000 कैन आई से इसका इनवॉइस एंड गुड्स दोनों आर कमिंग बिटवीन 23rd March to 31st March, इनवॉइस एंड गुड्स दोनों। बट इस 20,000 का इनवॉइस हैज कम बिटवीन 23rd March to 31st March, बट इसका जो गुड्स है वो आया है 5th April को, बराबर है। तो फर्स्ट इसको देखते हैं, ये आपका इनवॉइस और गुड्स दोनों बीच में आ गया। तो आर यू द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन 31st March? यस। वर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 23rd March? ये वाले, इसका इनवॉइस और गुड्स 23rd और 31st के बीच में है। वर द गुड्स इन फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 23rd March? नो। तो व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू विद दिस? व्हाट अबाउट दिस? Are you the owner of these goods on 31st March? Why? Invoice आ गया, आप owner है। Were the goods included in physical inventory on 23rd? No, तो ये भी क्या करना है, प्लस ही करना है। क्यों? डिलीवरी आया है इसका कब? 5th April को मिला, सुना? 5th April को डिलीवरी आई, 23rd March को फिजिकल स्टॉक में नहीं था, तो दोनों प्लस ही होगा। व्हाट इफ इसका डिलीवरी 20 मार्च को आ जाता, वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो ओनर थे ऑन 31st, यस, ओनर
ओनर थे, क्योंकि इनवॉइस भी बीच में और गुड्स तो पहले ही आ गया, तभी से ही आप बोलेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। Were the goods in the physical inventory on 23rd? Yes, क्योंकि 20 तारीख को ही आ गया तो नो इफेक्ट, तो फिर नो इफेक्ट होता है। समझ में आया? तो इस चीज का ख्याल रखना है कि जो पहले आए इनवॉइस या गुड्स आप ओनर बन जाओगे। तो यहाँ पर तो दोनों के ओनर हो और ये भी फिजिकल में नहीं है, ये भी फिजिकल में नहीं है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो डायरेक्टली आई कैन ऐड फुल 50,000, डायरेक्टली आई कैन ऐड फुल 50,000 परचेज। बराबर है? हेलो, समझ में आया? वर्किंग नोट बना लेना। देन out of the goods sent on consignment, out of the goods sent on consignment, goods worth 30,000 at cost were unsold. अभी इधर एक assumption आपको ख्याल रखना है। क्या assumption का ख्याल रखना है कि in the absence of any information, in the absence of any information, आप 23rd और 31st के बीच में खाली 4 आइटम्स अज्यूम करोगे। कौन से 4? परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। इन 4 का डेट नहीं दिया है ना, तो आप सोचोगे कि ये 23rd और 31st के बीच में हुआ है। कौन से 4? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। इसको छोड़ के कोई भी आइटम है, इसको छोड़ के अगर कोई आइटम है, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न को छोड़ के अगर कोई भी आइटम है और डेट नहीं दिया है, तो आप सोचोगे कि वो ये विंडो के बीच में नहीं हुआ है, ये विंडो से पहले हो गया। संभाल। चलो, मैंने क्या बोला, क्या अज्यूम करने का कि 4 आइटम्स, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, ये 4 ही आइटम इस विंडो के बीच में हो रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फो, ये 4 ही आइटम ये विंडो के बीच में हो रहा है। बाकी कोई भी आइटम है, कंसाइनमेंट वाला गुड्स है, सेल और रिटर्न का गुड्स है, कंसाइनमेंट में आया हुआ गुड्स है, कोई भी दूसरा गुड्स है, अगर कुछ डेट नहीं दिया तो इस विंडो के पहले हो गया, इस विंडो के पहले। जैसे कि ये वाला, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स वर्थ 30,000 एट कॉस्ट वेर अनसोल्ड। आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अब कब भेजा ये गुड्स? बिफोर 23rd, बिफोर 23rd। ऐसे मत सोचना कि 23rd और 31st के बीच में भेजा है। तो ना, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन, ना व्हाट इज अ कंसाइनमेंट सेल? शायद आपको याद होगा, मैंने बोला था एजेंट को बेच दो। एजेंट मतलब आपका एम्प्लॉय जैसा होता है, आपके बिहाफ पे बेचता है और कमीशन काट लेता है। तो आपने 30,000 का माल भेजा था, एट कॉस्ट दिया हुआ, वो अभी तक बिका नहीं है, तो ओनर कौन है उस गुड्स का? वो कि हम। तो एज ऑन ईयर एंड, आर वी द ओनर ऑफ दीज गुड्स? यस, करेक्ट। वर दीज गुड्स इन द फिजिकल स्टॉक टेकिंग ऑन 23rd? नो। हाउ कम? 23rd से पहले निकल गया। 23rd के पहले सर आपने ऐसा कैसा अज्यूम किया? मैंने अभी 4 आइटम्स, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, वही 4 ये 2 डेट के बीच में हो रहा है। बाकी कंसाइनमेंट मार्च फर्स्ट वीक में या फरवरी में या जैन में, कुछ भी अज्यूम करो, पहले हो गया। स्टॉक एक दिन से पहले ही हो गया। इज इट क्लियर? तो तब तक आया नहीं, तब तक बिका, वो तो दिया ही, अनसोल्ड, अनसोल्ड तो दिया ही है, अनसोल्ड तो दिया ही है, अभी तक बेचा ही नहीं आपने, मिला? आर यू द ओनर ऑन योर एंड? यस। वर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी? नो। तो ये प्लस हो जाएगा कंसाइनमेंट स्टॉक। ओके, कितना है? ये अगर सेलिंग प्राइस पे होता तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता, बट ऑलरेडी सीपी पर ही। समझ आया? तो ये भी आया। सेल्स वेर 1,70,000, सेल्स वेर 1,70,000। कंसाइनमेंट गुड्स मतलब है ना, मैं बॉम्बे में, तू मेरा एजेंट है दिल्ली में, तेरे को दिल्ली का मार्केट पता है, तो मैं यहाँ से माल भेजेगा, तू दिल्ली में बेचना और मैं तेरे को कमीशन दे देगा, लेकिन तू ओनर नहीं है, यू आर वर्किंग लाइक माय एजेंट, आई एम द ओनर। So till the point the goods are sold to third party, I will remain the owner. Risk of goods lies with me. मेरे जो भी लॉस हो गया मेरे को बेयर करना पड़ेगा। You are just custodian of the goods, caretaker of the goods. You are not the owner. तो मेरा गुड्स में तेरे को बेच के रखा है, फिजिकली मेरे स्टॉक में नहीं है,
लेकिन ओनर वही है, तो मेरा क्लोजिंग कॉस्ट में रिफ्लेक्ट होगा जब तक वो बिका नहीं, बेच दिया तो फिर मेरा ओनरशिप। सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं हुआ आपका लॉ में अभी तक, उसमें आया रहेगा कंसाइनमेंट का गुड्स। सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया ना, तो कंसाइनमेंट सेल नहीं है उसमें, सेल और रिटर्न कंसाइनमेंट दोनों। अब देखो आगे, ओनरशिप लाइज और ट्रांसफर, हाँ ओनरशिप। नाउ sales were 1,70,000 rupees. Now listen. These include goods worth 40,000 sent on approval. पहला सेल्स कौन से टाइम पीरियड में हुआ है? 23rd to 31st। तो 1,70,000 का आपका सेल है, ठीक है। अभी मैं पहले तो उसको मैं ब्रेक डाउन कर देगा, उसमें से 40,000 जो है दैट इज सेल ऑन अप्रूवल, सेल और रिटर्न है, बराबर है। 1,30,000 है वो नॉर्मल सेल हो गया आपका, बराबर। हेलो, हाफ ऑफ दीस वेर रिटर्न बिफोर 31st March एंड नो इंटीमेशन, वो 40,000 का है। ये 1,30,000 का कुछ इन्फो है, ये नॉर्मल सेल है। इसका इनवॉइस एंड गुड्स, इनवॉइस एंड गुड्स दोनों कब हुआ है? 23rd और 31st के बीच में गया है। तो 25 तारीख को समझो एक डेट पकड़ लो, 25 तारीख को ये सेल हो गया। आर यू द ओनर ऑन 31st? नो, क्योंकि 25 को बिक चुका है। वर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 23rd? यस, क्योंकि 25 को बिका है, 23rd को आपके स्टॉक में रहेगा। तो ये नॉर्मल वाला सेल माइनस कर दो पहले, लेस नॉर्मल सेल्स। सेल और रिटर्न का बाद में देखते हैं। नॉर्मल सेल एट सीपी लेना है, सीपी के लिए मार्जिन दिया हुआ है, फर्म सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। मिला? अरे नहीं, एक मिनट होता है, रुको रुको रुको, 1 मिनट, एक सेकेंड। ये 1,30,000 नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मली द फर्म सेल गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%. However, one lot of goods costing 30,000 was sold for 15,000. अब वो सेल भी है, 30 वाला 15 में बेचा, वो भी सेल है, ये भी सेल है। तो ये जो अबनॉर्मल गुड्स का सेल है, इसके अंदर पड़ा है कि अलग है? अंदर। कुछ नहीं दिया तो एक ही सेल के अंदर सारा कुछ पड़ा है। अगर कुछ अलग दिया होता तो फिर स्पेसिफाई करता कि अबाउ सेल्स में ये इंक्लूडेड नहीं है। आपका टोटल सेल हुआ है 1,70,000, उसमें सेल और रिटर्न का भी है 40,000, ये अबनॉर्मल वाला भी पड़ा है और नॉर्मल सेल भी, ऐसा है। हाँ, तो इसमें ना आपको अलग डिवाइड करना पड़ेगा। आपका ना 3 टुकड़ा होगा, ये सेल और रिटर्न है, एक अबनॉर्मल सेल भी है, अबनॉर्मल सेल भी है। बट वैल्यू इधर कितना आएगा? 30 की 15 आएगा। Why not 30? ऐसा नहीं होगा, 15 क्यों लिया मैंने? ये कौन सा वैल्यू है? तो ये भी सेल वैल्यू, ये भी सेल वैल्यू और इधर भी सेल वैल्यू। वो 30 तो कॉस्ट प्राइस है, समझ में आया? 30 का गुड्स आप 60 में बेचते तो इधर में 60 लिखता, 30 का गुड्स आप 40 में बेचते तो इधर में 40 लिखता, 30 का गुड्स आप 10 में बेचते इधर में 10 लिखता। सेल वैल्यू है, सेल्स ऑलवेज हैपन एट व्हिच वैल्यू? सेल वैल्यू। तो फर्क क्या है? इसको मैंने अलग क्यों लिखा? क्योंकि बाकी जो सेल है इसको हटा के कितना बचता है? 1,15,000। 1,15,000 का जो सेल है ना, ये नॉर्मल प्रॉफिट पे हो रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है आपका? कॉस्ट प्लस 25%, आई थिंक कॉस्ट प्लस 25, मतलब इफ कॉस्ट इज 100, कॉस्ट पे प्रॉफिट है तो ये 125 इज 1,15,000, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? 92 एग्जैक्ट। मिला? 1,15,000 into 100/25. Can I take directly 25% of 1,15,000? Why? Then profit on SP होता, आज ही सवेरे किया था वर्टिकल। ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है,
अगर प्रॉफिट ऑन एसपी दिया होता तो ये 100, ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। तो 100 + 25 125, दिस इज 150, दिस इज हाउ मच 92,000, गॉट इट। तो यहाँ से नॉर्मल सेल का सीपी माइनस होगा कितना 92, ये नॉर्मल सेल। ओके, नॉर्मल सेल मतलब सी प्लस पी एस पी 25% प्रॉफिट में गया। अब नॉर्मल सेल मतलब क्या ये 25% प्रॉफिट में गया, ये तो लॉस में गया, बट है तो सेल ही। और इसका भी इनवॉइस और गुड्स कभी डिस्पैच हो गया, 23rd to 31st के बीच में ही हो गया है ना। तो अब इमेजिन करो, आर यू द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन योर एंड? नो, डिस्पैच हो गया। वेयर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 23rd? यस, तो ये भी सेल ही है, ये भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये अब सेल्स है, इसको बोलते हैं अब नॉर्मल सेल। क्यों मैं इसको नॉर्मल बोल रहा हूँ, जिसको अब नॉर्मल बोल रहा हूँ? वो प्रॉफिट हो रहा है लॉस पे, लेकिन इधर तो सीपी रिकॉर्ड करना है। तो कितना रिकॉर्ड करूँ इसका सीपी? वापस करूँ क्रॉस मल्टीप्लाई? नहीं, इसका सीपी कितना है? 30 दिया होगा, तो इसका सीपी होगा 30, कॉस्ट प्राइस इज 30। आर यू लिसनिंग? देखो सिंपल एग्जांपल लो, आपका स्टॉक है ना, समझो 6,000 का गुड्स था। कितना? 6 में से है ना 4 का गुड्स है ना, 4 का गुड्स 8,000 में बिका और 2,000 का गुड्स 1,000 में बिका। सुना? 4,000 का गुड्स कितने में बिका? 8 में, और 2,000 का कितने में बिका? 1,000। तो आपका टोटल सेल कितना हो? 4 का गुड्स 8 में बिका, 2 का गुड्स 1 में बिका, तो 9,000 का सेल होगा। ये वो सेल है 9,000, ये वो सेल है, समझा? लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या है? दोनों 6,000, 4 और 2, ये वो कॉस्ट प्राइस। तो इधर से कॉस्ट प्राइस ही एडजस्ट करना, चाहे आप प्रॉफिट पे बेचो चाहे आप लॉस पे बेचो, इधर तो स्टॉक का कौन सा वैल्यू आने वाला है? औसत। अंडरस्टूड? ये वो वैल्यूएशन वाला नहीं है, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस, ये तो बिक चुका है। वैल्यूएशन वाला कौन सा होता है? बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक, जो बच जाता है उसमें अगर कोई डिफेक्टिव आइटम है उसको आप एनआरवी पे करो, समझा? इधर तो आ रहा है जा रहा है, प्रॉफिट में बेचो लॉस में बेचो, कॉस्ट टू कॉस्ट बेचो, इधर तो क्या रिकॉर्ड करना? कॉस्ट की रिकॉर्ड करना। समझ में आया? तो सेल के अंदर 3 सेल थे, एक अब नॉर्मल था, एक नॉर्मल था, ये दोनों समझ में आए? अब जाते हैं इस पे, इसको क्या बोलते हैं? सेल और रिटर्न। पढ़ो क्या दिया। These include goods worth 40,000 sent on approval. Half of these were returned before 31st March. And as regards to remaining half, there is no information available. अब इसमें से 2 पार्ट्स हैं। आधा मतलब 20,000 का गुड्स क्या हो गया? रिटर्न, और बाकी 20 का नो इन्फो। बराबर है? याद है ये कंसेप्ट मैंने बताया था आपको रेक्टिफिकेशन के बाद। क्या होता है सेल और रिटर्न? मतलब आप माल बेच के रखते हो, किसको? डेटर को। डेटर को अगर पसंद आया तो खरीदेगा, नहीं पसंद आया तो वापस करेगा, बराबर? लेकिन अगर ईयर एंडिंग आ जाए और बंदा जवाब नहीं दे रहा तो क्या अज्यूम करते हो? रिटर्न अज्यूम करते हो। तो ये तो रिटर्न ही है, तो कहना है इसे ये 20,000 23rd और 31st के बीच में बेचा और वापस भी आ गया, बेचा और वापस भी आ गया, तो सेल भी हुआ और रिटर्न भी हो गया। आर यू लिसनिंग? सेल भी हुआ और रिटर्न भी आ गया, आया कि नहीं? तो इधर कैसा दिखाने का? ये सेल हुआ तो ले सेल और रिटर्न एट सीपी, सेल और रिटर्न एट सीपी। क्या ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? नॉर्मल है, तो ये इक्वेशन से मिल जाएगा। इसका सीपी कितना होगा? ये 20,000 का अगर एसपी है तो इसका करस्पॉन्डिंग कॉस्ट कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 20 to 100 by 125, 16,000। तो ये 16,000 सेल हुआ और सेल्स रिटर्न भी हो गया, तो सेल्स रिटर्न एसओआर एट सीपी ऐड भी कर देने का इसको, क्योंकि सेल भी हुआ रिटर्न भी हुआ। नलिफाई मत करो, दोनों दिखाओ, दोनों दिखाओ, सेल भी दिखाओ और
इसको क्वेश्चन नहीं पूछने का, क्वेश्चन पूछना है ना तो इंडिविजुअली पूछना पड़ेगा। सेल का अलग, सेल्स रिटर्न का अलग। ये 20,000 का लॉजिक क्या है, 20,000 20,000 और 31st के बीच में बिका और वापस भी आ गया, तो वैसे तो नलिफाइड है, बट दिखाने का दोनों स्टेटमेंट में माइनस भी करने का और प्लस भी करने का। सेल और सेल्स रिटर्न, 1 मिनट, सेल और सेल्स रिटर्न, ये 16,000 समझा। अब ये 20,000, इसका क्या सीन है, ये भी बिका है और रिटर्न हुआ है कि नहीं हुआ? फिजिकली भले ही रिटर्न नहीं हुआ, लेकिन अज्यूम्ड रिटर्न है, अज्यूम्ड रिटर्न है, तो ये भी सेल है और सेल्स रिटर्न है, सेम ही रहेगा ऑप्शन। ये एक्चुअली रिटर्न हो गया है और ये फिजिकली उसके पास है, लेकिन ओनरशिप हमारा ही है, समझ में आया? और अपने को तो 31st का ओनरशिप ही चाहिए। देखो, इसको अगर क्वेश्चन पूछो सेल का क्वेश्चन पूछो, सेल का किसका, सेल का अलग, रिटर्न का अलग। सेल का पूछोगे तो क्या मिलेगा, आर वी द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन 31st? नो। वर द गुड्स इन स्टॉक? यस, तो माइनस। रिटर्न का पूछोगे 23rd और 31st के बीच में रिटर्न आ गया, आर यू द ओनर ऑन 31st? यस। वर द गुड्स इन स्टॉक ऑन 23rd? नो, तो प्लस होएगा। इसका भी वही है, भले ही फिजिकली उसके पास है लेकिन ओनरशिप तो हमारे पास है। सेल का तो सेम ही आएगा क्वेश्चन, सेल्स रिटर्न का देख लो, रिटर्न में आर यू द ओनर ऑन 31st मार्च? रिटर्न आ गया बुक्स में, यस। वेयर द गुड्स इन फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 23rd? नो, तो ये भी ऐड ही करना है। तो 100 बात की एक बात, whether it is returned actually or whether it is assumed to be returned, वो दोनों चीज सेम ही है अपने लिए। सेल एंड सेल्स रिटर्न विल रिमेन द सेम, गॉट इट? तो नलिफाई नहीं करना है, दोनों दिखाने का, नहीं समझा? देखो 20,000 का गुड्स, 23rd को पूछेंगे ना कि about the goods on in stock, जब ट्रांजैक्शन हो 25 तारीख समझ लो ना, 25 तारीख का डेट पकड़ लो। इसका समझा 20 का, एक मिनट, इस 20 का लॉजिक क्या है समझा? कौन से आ रहे सर, वो रिटर्न हो गए, रिटर्न हो गए, वो ये रिटर्न है, ये नो इन्फो है। रिटर्न हो गए हैं उनका समझा नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल। सर इन्वेंटरी, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछना है, दोनों का क्वेश्चन सेपरेटली पूछना, अगर पूछना तो सेपरेटली पूछो। तो सेपरेटली सेल्स पहले देखो, सेल्स 25 तारीख पकड़ के चलो, कब? 25 को सेल बिका, 25 तारीख को बिका, तो आर यू द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन 31st? वेयर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 23rd? तो माइनस। अब रिटर्न, सेल्स रिटर्न का अलग से पूछो, सेल्स रिटर्न का अलग से पूछो, तो 25 तारीख को रिटर्न हो गया, आर यू द ओनर ऑन 31st? वर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 23rd? नो, तो 25 तारीख को रिटर्न हुआ, उसके पास था, करेक्ट? सेल्स अलग, सेल्स रिटर्न अलग, तो फिट होएगा। नहीं तो फिर दोनों लॉजिकली सोचो ना, माल बेचा और वापस आ गया तो नलिफाइड, तो माइनस प्लस दोनों ही करना है, ऐसा भी कर सकते। अब गया क्वेश्चन दिमाग में, दोनों में अलग अलग करोगे तो फिट होएगा। इसका भी वही है, इसका भी पहला सेल सोचो ना, सेल कभी हुआ है 25 तारीख को, सेल कभी हुआ है 25 तारीख को, वर यू द ओनर ऑन 31st? नो, क्योंकि सेल हो गया 25 को। वर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 23rd? यस, क्योंकि 25 को निकला है, तो ऐड होगा। अब रिटर्न का सोचो, रिटर्न भले ही फिजिकली नहीं आया, रिटर्न तो अज्यूम कर रहे हो ना, 25 तारीख को रिटर्न अज्यूम कर रहे हो। आर यू द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन 31st? Yes, because you are assuming the return. You are assuming the return. So you are the owner on 31st. 31st को फिजिकल नहीं देखना है, 31st को ओनरशिप देखनी है। Are you the owner? Returns के बाद yes. नहीं है क्या? Shall still confused. ये इसका बात चालू, ओके? इसका पहले सेल देख ले, इसका पहले सेल। सेल कैसा है? सेल तो नॉर्मल है, माल गया 25 तारीख को। आर यू द ओनर ऑन 31st? नो। आर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 23rd? यस। 25 को बेचा है भाई, तो स्टॉक में था तभी तो बेचा।
सर पर सेल और रिटर्न भी 23rd के पहले अज्यूम करना है तो वो भी 23rd ये सारा सेल 23rd और 31st सेल और रिटर्न अब नॉर्मल सब 23rd और 31st ओके मिला यहाँ पे। अब जो ये 20 रिटर्न हुआ है सुन लो उसका सुन लो सेल्स रिटर्न का सुन लो। सेल्स रिटर्न कब अज्यूम कर रहे हो 31st से पहले? आर यू द ओनर ऑन 31st? सेल्स रिटर्न यस। वर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 23rd? वो तो 31st को भी नहीं है फिजिकल इन्वेंटरी तो अभी तक बायर के पास पड़ा। अपने को तो 23rd का फिजिकल स्टॉक देखना था 23rd को था क्या नहीं क्योंकि अब भी आया बराबर सर मतलब पूरा का पूरा वापस आ गया पूरा क्या पूरा वापस -32 +30 +30 वही बता रहा हूँ उसको कॉमन करके करते हैं। देखो तो जो एक्सेप्ट हुआ है जो रिटर्न हुआ है जो एक्चुअली रिटर्न हुआ है उसका भी सेम है जो अज्यूम्ड रिटर्न है उसका भी सेम ही रहेगा। नया दिमाग में क्या बोल कंफ्यूजन बोलो। देखो सेकेंड वाले का सेल्स का क्वेश्चन 25 को सेल हुआ आर यू द ओनर ऑफ 31st? वेयर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी खाली सेल का अलग रिटर्न का अभी से वही तो बोल रहा हूँ सेल का अलग रिटर्न का अलग सेल को अलग क्वेश्चन रिटर्न को अलग क्वेश्चन मतलब सेल इसीलिए कंपनी स्टॉक में थी इसलिए तो ये ऐसा है सेल गुड्स फिजिकल स्टॉक में थे एंड इसीलिए सेल किया 23rd गुड्स वर इन द फिजिकल स्टॉक और उसके बाद जब 31st मैसेज किया सेल और रिटर्न खाली सेल्स तो इसीलिए नो ओनरशिप यस और स्टॉक में नो स्टॉक में नो क्योंकि बाद में माल नहीं था बाद में बेचा बाद में नहीं था इसलिए रिटर्न हाँ उसके पास था अगर सपोज ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है जो दिया है तो 23rd को आपने स्टॉक किया तो आपको तभी थे फिर वो बेच भी दिए उस पर फिर रिटर्न भी आया इसीलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं प्लस माइनस एक्सेप्ट हो गया तो नॉर्मल से तो ये सेल और रिटर्न जो नॉर्मल रिटर्न हुआ है और ये सेल और रिटर्न का नॉर्मल से नॉर्मल रिटर्न अज्यूम वाले का भी सेम ही आ रहा है तो आप माइनस माइनस दो बार करने के बदले इधर यू कैन डू 32 एंड 32 इज दिस क्लियर दोनों ऐड ओके गेट मी द फाइनल आंसर करना हो वापस आएगा बोलो 5,58,000 बना लो स्टेटमेंट फटाफट स्टेटमेंट में नोट किया कॉपी नोट हो गया स्टेटमेंट बना लो फटाफट स्टेटमेंट लिखो इसमें ना रूल अप्लाई मत करो इसका रूल समझा सेल्स का नॉर्मल रूल नहीं समझा नॉर्मल सेल्स का रूल आर यू द ओनर ऑन 31st नो तो ये तो रेट द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी है इसका भी नो ये माइनस इसका क्या है सेल क्या रिटर्न आ गया तो प्लस माइनस दोनों सेल तो है तो माइनस रिटर्न आ गया तो प्लस ये भी सेल क्या माइनस रिटर्न आ गया खाली सेल हुआ तो इसका ही रूल अपना है माइनस धीरे धीरे जो गुड्स परचेज रिटर्न हुआ है सेल्स रिटर्न हुआ है वो दोनों प्लस दोनों में जाए बता दो पहले स्टेटमेंट बना लो कुछ देखो एक
Physical inventory was 6 lakhs. Add, what have you added? Well, purchase during the period. This was 50,000. Then what have you added? Or consignment, stock, unsold. ये भी add. और sales return during the period at CP is 32. तो ये 80 और 112 आ रहा है, 712 आ रहा है, फिर less sales during the period at normal selling price. The cost is 92,000. Abnormal sales during the period at CP 30,000, and goods sold on sale or return at CP is 32,000. 1,52,000 minus 152. 558. Ownership stock as on 31st. वापस आएगा, अभी तो शुरुआत इसी में खेलना है. See, question 20. मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ लेक्चर इम्पोर्टेंट है. देखो ऑनलाइन एग्जाम का कोई मार्क्स काउंट नहीं. सर मेरी जर्नल उसमें से पूरा और एनएल का तो पेपर भी डन कर लिया. सर इसकी ग्रेजुएशन आया अभी. कॉलेज एग्जाम में 7, 8, 9. बीएड आई है बड़ा अच्छा है. बोर्ड्स में उसका कुछ है नहीं. तुम लोग स्मार्ट हो. चलो see now question 20. Physical verification of stock 2020. Come on now. Physical verification of stock. Look at sum number 20. Physical verification of stock on 23rd June was physical verification was done on 23rd June. Value of stock was 48 lakhs. So 23rd June को stock था 48 lakhs का. Physical counting में ये आया. The following transaction took place between 23rd to 30th June. So that indicates what's your year end?
30th ऑफ जून। आराम से सोचो, एक बार नया का जाएगा। इट इज वेरी सिंपल, मस्का है वो। आउट ऑफ द टोटल गुड्स, अपने को मतलब 23 जून से कौन सा ढूंढना है? 30th जून का ढूंढना है। आउट ऑफ द टोटल गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स ऑफ 2,40,000 वेर अनसोल्ड। क्या सोचना है, क्या ये 20 और 30th के बीच में हुआ है कि पहले हुआ है? पहले हो गया। कंसाइनमेंट मतलब समझा, एजेंट के पास पड़ा हुआ है। तो आर यू द ओनर ऑन 30th ऑफ जून, पहला वाला। आर यू द ओनर ऑन 30th ऑफ जून? यस। हाउ? दिखा नहीं है हम ओनर है। परफेक्ट। Were the goods in the physical inventory on 23rd June? Why? इससे पहले dispatch हो गए हैं। So what are we supposed to do? So add consignment stock. Okay. CP दिया है, this is how much? 2,40,000. पहला वाला sorted है सबका, पक्का। दूसरा, purchases of 4 lakhs were made, of which 1,60,000 were delivered on 5th of July. Purchases of 4 lakh were made, of which 1,60,000 were delivered on 5th of July. अभी डिवाइड कर दो, ऐसे कभी भी परचेज आ जाए ना, उसको पहले डिवाइड कर दो। 4 लाख है टोटल, मिला। उसमें 2,40,000 अलग कर दो और 1,60,000 अलग कर दो। पहले 160 का डिलीवरी बाद में हुआ, राइट? तो 240 का सीन क्या है? 240 का इनवॉइस एंड गुड्स दोनों कब आया होगा? 23rd और 30th के बीच में। पिक अ डेट, लेट्स से 26 जून। 26 जून को इनवॉइस गुड्स आ गया, तो आर बी द ओनर ऑन 30th? यस, माल आ गया। Were the goods in the physical stock on 23rd? No, क्योंकि बाद में आया है 23rd से। तो ये मैं क्या कर देगा? Add purchases, add purchases। कितना? 2,40,000 बराबर। अच्छा, इस वाला परचेज का क्या सीन है? इसका इनवॉइस कब आया है? 23rd और 30th के बीच में आया है, बराबर है? हेलो। बट माल कब आया है? गुड्स आया है 5th जुलाई के बाद, 5th जुलाई को। बट अपने को कोई मैटर करता है ये चीज, क्योंकि आर वी द ओनर ऑन 30th जून? यस। हाउ? इनवॉइस आया गया है, तो वी आर द ओनर। वर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 23rd? 23rd को तो नहीं था, तो ये भी क्या होगा? ऐड। तो ये दोनों परचेज ऐड ही है, तो आई कैन राइट हियर स्ट्रेट अवे कितना? 4 लाख। या अगर आपने लिखा है तो ये नोट है, नोट में 240 और 160, लेकिन स्टेटमेंट में डायरेक्टली यू कैन राइट 4 लाख। इज इट क्लियर? लास्ट सम में ऐड करके लिखा ना आपने? 50 लिखा ना लास्ट सम में? देख लो एक मिनट, ऐड आउट। लास्ट सम में कितना लिखा? परचेज 50 आया। समझ में आया? अलग अलग लिखो, इधर नोट में चलेगा 241 से, स्टेटमेंट में क्लब कर देना। इज दिस क्लियर? पहला दो में डाउट? श्योर गाइस? थर्ड, sales were 13,60,000 which includes goods of 320 sent on approval. Half of these were returned before 30th June but no info is regarding remaining half. सेम ही है अभी जो किया। हाँ बोल। 2,40,000 का है, हाँ। उसमें से वो खाली 1,60,000 का बाद में है ना, 240 तो पूरा दोनों आ गया रहेगा। हाँ। ये सीएस तो नो इफेक्ट नहीं, 240 का माल और इनवॉइस 23rd और 30th के बीच में आया, 25 जून का है। तो आर यू द ओनर ऑन 30th जून? ओनर है, यस। वर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 23rd जून? 25th को आया है ना। अगर माल 23rd से पहले आ जाता तो यस यस हो जाता, तो फिर नो। अभी सेल्स हुआ है, यहाँ पे मिला। सेल में देखो लास्ट में एक और आइटम दिया है,
Goods are sold at cost plus 25%. However, goods costing 2,40,000 have been sold for 1,20,000. सेम ही है. सेल का पूरा धनुष बना लो एकदम बड़ा सा. इधर सेल्स है टोटल आपके कितने 13,60,000 का मिला. ये सेल वैल्यू है कि कॉस्ट वैल्यू? सेल वैल्यू है. इसमें से सारे सेल वैल्यू अलग करते हैं. पहला सेल और रिटर्न का कितना है देखो उसमें से 3,20,000 ये अलग कर दो. अच्छा अब नॉर्मल वाला कितना है? कॉस्टिंग 240 सोल्ड फॉर 120. तो इधर क्या लिखो 120 की 240. हाँ हाँ अब नॉर्मल. दिस इज अब नॉर्मल. क्यों मैं इसको अब नॉर्मल बोल रहा हूँ? बिकॉज नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे नहीं है. ओके बचा कितना ना 9,20,000. These are normal sales. 9,20,000. सही बात. पहले इसको पकड़ो. ये 920 का इनवॉइस एंड गुड्स कब डिस्पैच हुआ है? 23rd और 30 के बीच में. आराम से सोचो. पिक अ डेट 26 जून. 26 जून को माल पिका. आर यू द ओनर ऑन 30th? नो क्योंकि बिक चुका है. वर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 30th? यस. तो हम क्या करें? माइनस. तो वर्किंग नोट में कुछ भी खेल कर लो आप. अलग अलग लिखो ब्रेक डाउन करके करो. उधर जोड़ देना स्टेटमेंट. ये वर्किंग नोट ही है आपका. तो इधर आएगा आपका नॉर्मल सेल्स का सीपी. नॉर्मल सेल्स का सीपी विच इज आई थिंक कितना आ रहा है सीपी. इधर सी प्लस पी एस पी कर लो. ये भी दिखाना है नोट में. 100 प्लस 25 125. कॉस्ट पर ही था ना प्रॉफिट है ना. तो ये 9,20,000 है. ये कितना आ रहा है 7,36,000 मिला. This is the cost price 7,36,000. सीपी पे रिकॉर्ड होता है ना. अभी सेल और रिटर्न को साइड पर रखो. इसको पकड़ो. अब नॉर्मल सेल भी तो सेल ही है. ये भी नॉर्मल सेल है. ये भी अब नॉर्मल. ये भी सेल ही है. तो ये माइनस हुआ तो ये भी माइनस ही होगा है ना. वी आर नॉट द ओनर एंड द गुड्स आर गेटिंग स्टॉक. तो ये भी माइनस होगा. लेस अब नॉर्मल सेल एट सीपी कितना होगा 120 के 240 कॉस्ट प्राइस बराबर है. इज दिस क्लियर? अच्छा अब बचा ये सेल और रिटर्न. इसमें से कुछ गुड्स रिटर्न्ड है 160 का और कुछ गुड्स का जवाब नहीं आया. जो रिटर्न्ड है उसका क्या सीन हुआ? वो 23rd और 30th के बीच में गया भी और वापस भी आया. गया भी और वापस भी आएगा तो क्या करने का? माइनस प्लस दोनों कर देने का. सेम पीरियड में परचेज रिटर्न है. सेल्स रिटर्न है. नलिफाई हो जाए. बट लिखना दोनों है. प्लस माइनस करके नलिफाई करना. दोनों लिख के नलिफाई करना है. ओके तो 160 नलिफाइड प्लस माइनस. और ये क्या है? नो इन्फो में आप क्या अज्यूम करते हो? ये भी रिटर्न है तो ये भी सेल्स रिटर्न दोनों हो गया. ये भी सेल्स रिटर्न दोनों है. ये भी सेल्स रिटर्न दोनों है. सेल मतलब माइनस और सेल्स रिटर्न मतलब प्लस. तो सेल और रिटर्न का सेल माइनस होगा और सेल और रिटर्न का रिटर्न प्लस हो जाएगा. बट एट सीपी तो इसका कितना आ रहा है? 3,20,000 ले लो सीधा. इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? 320 to 100 at 120. How much? 256. So 256 minus and 256 plus. Bas, get the answer. 44 lakh. 60. 64. अब गया थोड़ा दिमाग में. 44 64. पहले जो गुड्स रिटर्न है पोस्ट वाले जो जिस दिन सेल हुआ उस दिन रिटर्न तो आगे का ओनर आएगा दोनों साथ में मत करो. सेल्स का सेल का अलग सेल्स रिटर्न का अलग. वो सेल्स रिटर्न का पहले सेल्स का. सेल्स का मतलब हाँ. रिटर्न हाँ. आर यू द ओनर तो हाँ हाँ और इन द स्टॉक तो भी हाँ नहीं उसी दिन वापस आता है. नहीं वो वाला नहीं है. अलग सेल्स रिटर्न इंडिपेंडेंट.
सेल्स इंडिपेंडेंट। हाँ तो मतलब 30 के बाद गुड्स वापस आएंगे। तू जो सेल सोच रहा है ना, वो तेरे गुड्स थे, तूने बेचे, ऐसा सोचना है। और जो रिटर्न हो रहा है ना, वो 23rd से पहले तेरे पास क्यों थे, वहां से आ जब वापस आ रहे तो 20 दोनों को इंडिपेंडेंटली तो आए। वैसा करेगा तो ये तो चिन्ह है, डायरेक्ट प्लस माइनस दिख ही रहा है, वापस गया वाला प्लस माइनस। सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न में रूल अप्लाई मत करो। हाँ रूल अप्लाई किया ना तो इंडिपेंडेंटली। एक का जो परचेज कर लिया बट इन्फो नहीं दिया, हाँ उसमें वो फिजिकल काउंटिंग में था और लास्ट में ओनरशिप भी हम लोग का, तो नल होगा, वो नल इफेक्ट होगा। सेल्स रिटर्न में जो ये वाला सेल्स रिटर्न है, इसका बात कर रहे हैं, इसका इन्फो नहीं दिया। है। वही तो ये जिसका इन्फो नहीं दिया, 160 इन्फो नहीं दिया है, रिटर्न है। रिटर्न नहीं हम लोग अज्यूम रिटर्न है, तो रिटर्न ही हुआ, रिटर्न ही हुआ। आर यू द ओनर ऑन 30th? यस, ओके। सेल्स रिटर्न है, मतलब पहला कभी तो बिका है, अभी रिटर्न हुआ है। पहला कभी तो बिका है, अभी रिटर्न हुआ है। आर यू द ओनर? यस। वर द स्टॉक गुड्स इंक्लूडेड इन स्टॉक? नो, क्योंकि पहला बिक चुका है, आपके पास टाइम है। दोनों को इंडिपेंडेंट है अभी दिमाग। ये जो सेल रिटर्न है सर, उसमें जो रिटर्न हुआ है वो वही गैप, वो जो ये है गैप रिटर्न हो गया था और वापस भी अपने पास इसलिए ना प्लस माइनस बनाना स्टेटमेंट फटाफट। और जो नो इनपुट में रिटर्न ही सब्सिट्यूट करेंगे। हाँ हाँ जो नो इनपुट है, जो उसको भी ऐसे ही ना कि रिटर्न आ जाएगा। हाँ, बस ये रिटर्न जो assume। concept था, और थोड़ा भी डिजाइन assumed return, सेम कंसेप्ट। ओनर है प्लस माइनस सेम। हाँ, अगर एक्सेप्ट किया होता ना उसने तो प्लस तो खाली माइनस सेल हो गया। एक्सेप्ट किया मतलब सेल हो गया। कोई ऐसे ये कैसे सेल हुआ, ये कैसे सेल हुआ, ऐसे ये सेल तो यस में आता तो खाली माइनस मानो यस आगे हुआ है। 27 तारीख को आपने बेचा है, तो आर यू द ओनर ऑन 30th? नो। वेयर द गुड्स स्टॉक? तो माइनस। लेकिन अगर रिटर्न किया या नो इन्फो, दोनों में सेम। गया भेजे में गया थोड़ा थोड़ा अभी ये करो और उसके बाद एक मॉडल ट्राई सम नंबर 10 ऑन योर 10 सम इज मॉड्यूल सम इधर से करो। कम ऑन ट्राई 10 सम। Tenth sum. हर्षवर्धन और आर्यन बंद्रा किधर? कॉलेज
तीन घंटा साला पिला और फॉर्म भी फिलअप किया। किन लोग का? आर्यन शांति 20 जन का हुआ। तेरा हुआ कि नहीं? तेरा आज नहीं था। 3 घंटे में 20 लोग। मॉम है भर सकता है। एजुकेशन इज बहुत, इसलिए एवरी ईयर अराउंड 6000 मिलियनर्स, बीच में डेटा आया था, 6000 मिलियनर्स लीव इंडिया परमानेंट एवरी ईयर। 6000 करोड़पति परमानेंटली छोड़ के भाग जाते हैं। यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रेन क्या विराट कोहली भी चला गया ना लगे। हर बार सब करके उधर ही सेट होने का प्लान है। आधा टाइम उधर ही रहता है वो। मेरे को रोहित शर्मा क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर, सोशल लाइफ का तकलीफ है। ऐसा सिटी मारेगा 10 लोग इधर जमा हो जाएंगे। एक को बुलाएगा 10 आ जाएगा, उधर एक भी नहीं आएगा। सोशल लाइफ इज बैड। बाकी तो सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाइजीन, एयर क्वालिटी सब अच्छा ही है। नो सोशल लाइफ ईशान उधर जाएगा तो बॉडी जल्दी बनेगा। क्यों खोल रहे हैं? कैसे कैसे बोल जम रहा है क्या? आर्यन, भद्रा, इतिका, तत्व, सिद्ध, हर्षवर्धन, श्रुति और वो क्यों नहीं आई? सानवी क्यों नहीं आई? नेस्को के लिए नहीं आई? हाँ? पागल। जो जाने का धरना देने बैठने का है। उन लोग का मतलब रात को खेलो, 4 बजे तक उठो, 12 बजे को आँख खुलेगा, वापस नेस्को में जाके बैठना। ऐसा अलग है। फालतू नहीं है। मैंने माइनस तो किया।
ये देखिए जो सेल्स है तो करेक्ट किया है प्लीज चलो guys, quick. जो पहले आया वो BC बस जो पहले आया वो इनवॉइस आया तो भी ओनर है, गुड्स आया तो भी एक का गुड्स बाद में आया लेकिन इनवॉइस तो आ गया। पहले नोट बनाए क्या नोट? क्या परफेक्ट है
चलो हो गया, क्या है आंसर? 716833 716833 716833 जमा 716833 मिला कि नॉन? बोलो 716833 देखो नेक्स्ट वन एक सम नंबर 24 चलो 24th सम देखो लुक एट 24th सम लास्ट सब 7168 अभी इतना छोटू मत लिखना स्टेटमेंट बोलता हूँ मैं 24th सम देखो Alpha Limited prepares accounts on 31st March every year. On 31st March 07, its stock checking expert was ill and preparation of physical inventory was delayed till 3rd April. 3rd April को delay कर दिया. On which date the stock was valued at 2,40,000. मिला 240 का स्टॉक था on 3rd April. अभी थोड़ा सा ख्याल रखना आपका ईयर एंडिंग क्या है 31st मार्च और स्टॉक टेकिंग कब हुआ है 3rd April. आगे हो गया बैकवर्ड रोल आ रहा है. An examination of inventories and related financial records discloses that between 1st and 3rd April 07 sales totaled कितना 40,000 including 2,000 in respect of the goods which left the warehouse on 29th March. चलो पहले तो मैं अलग कर देता हूँ 2000 को. 4,000 in respect of the goods which were not dispatched until 12th April. मिला. Then rate of GP दिया हुआ. तो बचा कितना? 2 हटाओ 4 हटाओ तो 34. I think ये नॉर्मल सेल है 34. तो पहले नॉर्मल को पकड़ते हैं. नॉर्मल वाला सेल का इनवॉइस एंड गुड्स कभी निकला होगा 1st अप्रैल से 3rd अप्रैल के बीच में है ना. हेलो 1st और 3rd के बीच में इनवॉइस और गुड्स दोनों निकल गया. अपना पॉलिसी तो नॉर्मल है फर्स्ट कम फर्स्ट गॉन फर्स्ट सर्व व्हाटएवर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. अभी 1st और 3rd के बीच में मतलब 2nd अप्रैल पकड़ लो. 2nd अप्रैल को माल बेचा. आर यू द ओनर ऑन 31st March? Yes. Where the goods in the physical inventory on 3rd April? So what am I supposed to do? सर अभी तक तो सेल माइनस करते थे आप. वो फॉरवर्ड रोल था ये बैकवर्ड रोल और लेना सीपी है. मार्जिन दिया हुआ है. व्हाट इज द मार्जिन? 30% on cost कि 30% on sale? Rate of gross profit to sales was 30%. तो क्या 100 लेने का SP? ये 30 ये 70. ये कितना है 34,000. तो ये कितना है? ये नॉर्मल है. पहले नॉर्मल को खत्म करो. हाँ 20 हाँ -30% इंटू 70/100 करो तो भी बढ़ जाए. ये कॉस्ट पे नहीं है एसपी पे. प्रॉफिट ऑन एसपी है. सुना एसपी 100 लेना है. कॉस्ट इज 70. तो 23,800 इधर ऐड कर देना है आपको. ये समझ में आया पहले सबको? ओके अब इस पे जाते हैं. ये 2000 वाला पढ़ो क्या है. In respect of the goods which left the warehouse on 29th March. तो इस पे आपका जो goods है वो 29th मार्च को ही डिस्पैच हो चुका है और जो इनवॉइस है वो 1 और 3 के बीच में डिस्पैच हुआ है. सही बात है.
अभी आप क्या अज्यूम करते हो, जो पहले गया वो, तो अगर goods are dispatched between 29th March, goods are dispatched on 29th March, so are you the owner of these goods on 31st March? No. Why? वो पहले हुआ उसके हिसाब से, बराबर है। गुड्स गया, ओनरशिप गया, सही बात? नो, वी आर नॉट द ओनर, वी आर नॉट द ओनर, राइट? हेलो, आर द गुड्स इंक्लूडेड इन द फिजिकल इन्वेंटरी टेकिंग ऑन 3rd April? पहले ही चला गया, तो ये भी नो, ये भी नो, नो इफेक्ट। नो इफेक्ट में मतलब नोट लिखना पड़ेगा, गिव यू अ नोट आफ्टर द स्टेटमेंट, ओके? समझा क्यों नो इफेक्ट? ओनर भी नहीं है और माल भी नहीं, दोनों नहीं है, सही बात? इसका क्या हो रहा है, इसका गुड्स कब डिस्पैच हुआ है? पढ़ो, 12 अप्रैल को डिस्पैच हुआ है, और इसका इनवॉइस कब डिस्पैच हुआ होगा? 1/4 और 3/4 के बीच में। अच्छा, 12 अप्रैल को माल गया, 1/4 और 3/4 के बीच में इनवॉइस गया। Are you the owner of these goods on 31st March? Yes. ओनर है ना? पक्का? कब बिका? 12 को तो माल गया, इनवॉइस कब गया? 1 और 3 के बीच में, तभी बिक गया। तो आर यू द ओनर ऑन 31st March? Yes, तभी तो बेच पाए। हेलो, आर दीज गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 3rd April? क्योंकि 12 अप्रैल को डिस्पैच हुआ, 3rd अप्रैल को तो था ही, ओनर भी था और फिजिकल में गुड्स भी पड़ा हुआ है, तो यस क्या होगा, ये नोट में चला जाएगा, नो इफेक्ट, सिंपल। तो ये दोनों आइटम यहाँ पे दिखने वाला क्यों नहीं दिखेगा, समझा? क्योंकि माल भी है, एक में माल भी है और ओनरशिप भी है, दूसरे में माल भी नहीं है और ओनरशिप भी है, ओके? नेक्स्ट वन, रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर्स टोटल 6000। रिटर्न्स मतलब क्या है, वो सेल्स रिटर्न, वो अलग ही है, सेल्स रिटर्न, सेल अलग है, सेल्स रिटर्न अलग है। सेल्स रिटर्न बताओ, 1 और 3 के बीच में सेल रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ, रिटर्न। आर यू द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन योर एंड? सेल्स रिटर्न का बात कर रहा हूं। आर यू द ओनर ऑन योर एंड? 31st मार्च को ओनर थे कि नहीं? पक्का? क्यों? क्योंकि 1 और 3 के बीच में माल है ना, तभी तो डेटर के पास रहेगा। वी आर नॉट द ओनर। आर द गुड्स इन द फिजिकल स्टॉक ऑन 3rd April? तो मैं क्या करूं? माइनस कर देगा, लेस सेल्स रिटर्न्स एट विच प्राइस? सीपी निकाल लो इसका। तो सीपी कैसे निकालोगे? यही है, कितना है? 6000 है आपका, तो फॉर क्रॉस में 4200 गया दिमाग में? हेलो, फिर परचेजेस टोटल 18,000। अभी परचेजेस टोटल 18,000, आउट ऑफ विच goods worth 6,000 received on in March and goods worth 3,000 received on 10th April. ये अलग दिया है, तो बचा कितना? 9,000। हेलो, ये नॉर्मल परचेज हुआ, यस? नॉर्मल का मतलब है इसका इनवॉइस और इसका गुड्स दोनों ही 1st और 3rd के बीच में हुआ है, करेक्ट? यस? चलो सोचो, मुझे बताओ 9,000 का इनवॉइस और गुड्स दोनों 1 और 3 के बीच में हुआ है। Are you the owner on 31st March? No, क्योंकि बाद में आया है। Where the goods in the physical inventory on 3rd? Yes, तो मैं क्या करेगा? माइनस परचेजेस, ये नॉर्मल वाला है 9,000, ये तो कॉस्ट पर ही रहता है, यस? नया क्वेश्चन दिमाग में? अभी ये 6,000 के बारे में पढ़ो, क्या दिया है? इन रिस्पेक्ट ऑफ 6,000 of goods were received in March. Please focus. 6,000 का goods were received in March और इनवॉइस कब आया होगा? 1 और 3 के बीच में। इनवॉइस तो सभी का 1 और 3 के बीच में है। हेलो 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 हेलो, तो गुड्स मार्च में आया, इनवॉइस 1st और 3rd के बीच में आया। आर यू द ओनर ऑन 31st मार्च? हाउ? माल आ गया, ओनर हो गया, बराबर है?
अच्छा, आर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंट्री ऑन थर्ड, तो ये भी नो है तो नोट में चला जाएगा, सही बात। इसको प्लस माइनस नहीं करना है, प्लस माइनस किसको करना है, परचेज रिटर्न सेल्स, ये तो है ही नहीं। अभी इसका क्या सीन है, 3000 का क्या सीन है, 3000 फॉर गुड्स रिसीव्ड ऑन 10th of April, 10 अप्रैल को गुड्स आया है, तो गुड्स मिला है 10 अप्रैल को, और इनवॉइस कब आया होगा, 1 और 3 के बीच में, है ना। माल आया 10 को, इनवॉइस आया 1 और 3 के बीच में। आर यू द ओनर ऑफ 31st मार्च? नो, ये बाद में आया। आर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 3rd? नो, क्योंकि माल भी तो और लेट आया, 10 तारीख को आया, तो नो। इसमें भी क्या सीन है, एक में माल और गुड्स दोनों था, ओनरशिप भी थी, एक में माल और ओनरशिप दोनों नहीं। रिटर्न टू सप्लायर टोटल 4000, व्हाट इज दैट? अब सोचो, 1 और 3 के बीच में परचेज रिटर्न हुआ है, क्या हुआ बेटा? परचेज रिटर्न, आया हुआ माल वापस, परचेज रिटर्न। इसका परचेज रिटर्न नहीं, अलग परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। आर यू द ओनर ऑन 31st मार्च? यस, डेफिनेटली, क्योंकि तभी तो आप रिटर्न कर पाए। आर द गुड्स इन द फिजिकल स्टॉक ऑन 3rd? नो, क्योंकि रिटर्न कर दिया, अपने पास नहीं है, तो परचेज रिटर्न्स एट सीपी रहता है, इसमें कुछ सीपी भी ढूंढना नहीं है, सेल्स रिटर्न और सेल में ही सीपी ढूंढते हो आप, है ना। परचेज रिटर्न तो कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, मिला। There were arithmetical errors in the stock sheets on 3rd April, resulting in an overvaluation of 4600. ज्यादा बता दिया गलती से, क्या करेंगे? Less overvaluation of stock शीट कैलकुलेशन कितना है ये? 4600 हटाओ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक? 250600 मिला। हेलो, 2,50,000 एग्जैक्ट, चेक गया दिमाग में। मेक द स्टेटमेंट क्विकली, स्टेटमेंट कर पाओगे होमवर्क? स्टेटमेंट कर लो, कर लो। चलो नेक्स्ट सम, हाँ नोट लिखो, राइट डाउन द नोट, नोट लिखो पहला, फर्स्ट नोट लिखो, सेल्स ऑफ 2000। नोट इज वेरी सिंपल, सी एक तो लिखोगे आपको आइडिया आ जाएगा, 4 नोट्स आएगा, 4 का एक लाइन का ही है, लिखो सेल्स ऑफ 2000 will have no effect, sales of 2000 will have no effect, sales of 2000 will have no effect, as we are neither the owners nor the goods are available in physical inventory. Sales of 2000 will have no effect, as we are neither the owners nor the goods are available in physical inventory. Sales of 2000 will have no effect, as we are neither the owners nor the goods are available in physical inventory. Nor the goods are available in physical inventory. इसका लिखना 4000. Sales of 4000 will have no effect. Sales of 4000 will have no effect, as we are the owners and the goods are included in physical inventory. Sales of 4000 will have no effect, as we are the owners and the goods are included in physical inventory. Sales of 4000 will have no effect, as we are the owners and the goods are included in physical inventory. सेम नोट फॉर परचेज लिखो, खुद से लिखो। इसका क्या आएगा? 6000 का
we are the नहीं sorry हाँ we are the owners and the goods are included in physical inventory. इसका क्या आएगा 3000 का? We are not the owners and goods are not included in physical. 2 में we are the owners and goods are included. 4 में we are neither the owners nor the goods are included in physical. Last sum 27. सर ये क्या बात है सर? 27 कुछ नहीं ये आ गया तो वो भी आएगा सिंपल इसी लाइन देखो 27 हो गया ये नोट्स लिखा 27 देखो ध्यान से क्या दिया लास्ट सम ओमेगा लिमिटेड prepares accounts on 31st March every year 90% सब इसके जैसा ही है 90% 10% आ जाता है दिमाग लगा ओमेगा लिमिटेड prepares accounts on 31st March 07 its stock taking export was ill preparation of physical inventory was delayed till 3rd April on which date the stock value was 2,40,000 मिला फिजिकल स्टॉक कब लिया है आपने 3rd April को 2,40,000 मिला हेलो 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 मिला अभी पढ़ो examination of inventories related to financial records discloses that between 1st and 3rd April करूं are you with me चलो देखो sales totaled 50,000 sales totaled 50,000 का टोटल सेल है ठीक है उसमें क्या दिया है 3,000 in respect of goods which left the warehouse on 29th March 3,000 का goods left the warehouse on 29th March and 5,000 did not dispatch until 12th April देखो similar statement मिला and 2,000 in respect of goods invoiced and dispatched on 1st April but were returned by the customer on 2nd April for which no credit note was passed but which are in fact included in the stock on 3rd April तो 2000 का सीन क्या हुआ 2000 का गुड्स का सीन गया भी और वापस भी आ गया हेलो तो बचा कितना 50,000 में से 3,000 अलग किया 5,000 अलग किया 2,000 बेचा और वापस आ गया 2,000 बेचा और जो 2,000 बेचा और वापस आ गया these are sale and return इसको क्या करते हो माइनस प्लस दोनों तो बचा कितना व्हाट इज माय नॉर्मल सेल 5 5 10 40,000 इज माय नॉर्मल सेल अग्री तीन के जगह 4 टुकड़ा 3 टुकड़ा तो समझा आपको ये वाला 29 मार्च को गुड्स डिस्पैच हुआ 1 और 3 के बीच में इनवॉइस है ये सेल और सेल्स रिटर्न दोनों है 2000 ये 40 नॉर्मल है ये 5 का डिस्पैच है 12 अप्रैल को हेलो अब एक एक को पकड़ के करते हैं आराम से पहला नॉर्मल सेल बताओ नॉर्मल सेल आर वी द ओनर ऑन 31st March yes are the goods in the physical inventory on 30th what am I supposed to do at normal sale but कौन सा प्राइस लेगा at CP लेना है ना CP क्या है gross profit to sales was 25% okay तो 25 75 40,000 कितना 30 आया हेलो भैया ये 30 क्लियर बॉस
ये 40,000 वाला क्लियर पहले। Quiet please. What about this 3,000? 29 March को ये dispatched है. Are you the owners on 31st? Are you the owner on 31st? No, क्योंकि गया. Are the goods in the physical inventory? No. क्योंकि गया, पहले ही गया. बराबर है? No effect. Note आएगा. Neither the owner nor the goods in physical inventory, right? उड़ाओ. ये वाला भी वैसा ही था. 12 अप्रैल को dispatch हुआ है. Are you the owner on 31st March? Yes. Are the goods in physical inventory? Yes. ओनर भी है, माल भी पड़ा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। ये 2000 का क्या करने का? 1 अप्रैल को गया, 2 अप्रैल को वापस आ गया। तो आपको रूल अप्लाई करना है हर्षल जी, तो अलग अलग करना, सेल को अलग करना, सेल्स रिटर्न को अलग करना, वरना रूल अप्लाई मत करो। वो हमने किया था ना, सेल और रिटर्न, गया वापस आया, प्लस माइनस, माइनस टू प्लस टू दिखाना पड़ेगा, उसको नोट में मत डालना। डोंट पुट दिस आइटम अंडर नोट, इसको सेल में भी दिखाओ, ऐड सेल, ऐड सीपी, इसमें ऐड कर सकते हो आप सीधा। कितना है? 2000 का सीपी आएगा आपका 1500, बराबर है? हेलो, 1500 ऐड करो और लेस सेल्स रिटर्न, ऐड सीपी 1500 माइनस करो। तो इसमें आप ये जब स्टेटमेंट लिखोगे तो ये पूरा सेल ऐड कर सकते हो, 31.5। इज दिस क्लियर? बताओ, ये वाला पार्ट समझा? ओके, करें नाउ। रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर्स टोटल 6000, मतलब क्या है वो? सेल्स रिटर्न्स है ना? है ना? हेलो, तो सेल्स रिटर्न्स क्या सोचो, सेल्स रिटर्न कैसे सोचने का? 1 और 3 के बीच में माल वापस आया। आर यू द ओनर ऑन 31st? नो, डेटर के पास था। आर द गुड्स इन द फिजिकल स्टॉक ऑन 30th? यस। तो माइनस सेल्स रिटर्न, इसके साथ आप ऐड कर सकते हो सेल्स रिटर्न, ऐड सीपी। सीपी कितना है? ये 6000 है, ये कितना? 4500 आ गया, मिला? ये माइनस कर, ये दोनों ऐड कर सकते हो, ये दोनों ऐड कर सकते हो इन योर स्टेटमेंट। फिर परचेजेस टोटल 28,000, परचेजेस टोटल 28,000, आउट ऑफ विच 7,000 were received in March, 7,000 were received in March, बराबर है? बट इनवॉइस 1 और 3 के बीच में 4,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स ऑफ 10th, 4,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स ऑफ 10th, 3,000 आया भी और 2,000 दो तारीख को रिटर्न भी किया। नो क्रेडिट नोट हैज बीन रिसीव्ड, बट स्टॉक में से निकाल दिया। क्रेडिट नोट से फर्क नहीं पड़ता, वो आपका अकाउंट्स का रिकॉर्ड है, स्टॉक में से निकल गया। इज इट क्लियर? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? स्टॉक, फिजिकल स्टॉक में से गया तो कितने का था? आया गया 3, तो 3,000 का आया भी और गया भी, तो परचेज भी है और परचेज रिटर्न भी है, और बचा कितना आपका? 28, 10, 4, 14,000 इज नॉर्मल, राइट? 14,000 is normal purchase. Got it? 14,000 is normal purchase. तो 7, 3, 14 and 4. 7, 3, 14 and 4. 14 का बताओ, 1 और 3 के बीच में हुआ है परचेज। Are we the owner on 31st? No. Are the goods in stock on 3rd? Yes. तो माइनस परचेज,
कितना आएगा 40 मिला हेलो देन 7000 के लिए क्या सीन है मार्च में ही माल आ गया तो आर यू द ओनर्स आर यू द ओनर्स यस क्योंकि मार्च में ही माल आ गया आप ओनर हैं आर द गुड्स इंक्लूडेड इन स्टॉक यस नो इफेक्ट इसका भी वही है 10 को गुड्स आया है एक और 3 के बीच में इन्वॉल्व आया आर यू द ओनर ऑन 31st नो आर द गुड्स इन स्टॉक ऑन 3rd नो 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 इफेक्ट केसेस नो इफेक्ट एंड ये चिन्ह क्या करना है 3000 आया गया प्लस माइनस राइट तो शो इट एज परचेज आल्सो ये परचेज ऐड कर सकते हो 3000 का परचेज दिखाओ और परचेज रिटर्न भी दिखा दो परचेज रिटर्न्स भी दिखा दो 3000 ओके तो ये दोनों परचेज आप क्या कर सकते हो स्टेटमेंट में ऐड कर लो यहाँ तक परचेज और सेल क्लियर है हेलो 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 समझा क्यों ओके गाइस क्लियर टू दिस पार्ट 3 आइटम तो लास्ट सम गए हाँ बस 2 मिनट्स मिलेगा जगह रोज तुम तो बहुत छोटे हो आराम से नाउ इधर देखो रिटर्न टू सप्लायर आर 5000 फटाफट बोलो मेरे को रिटर्न टू सप्लायर आर 5000 परचेज रिटर्न एक और 3 के बीच में आर यू द ओनर ऑन 31st यस तभी तो रिटर्न कर रहे हो आर द गुड्स इन फिजिकल इन्वेंटरी नो तो प्लस परचेज रिटर्न कितना 3000 ये 3 और ये 3 क्या कर सकते हो आप ये 3 और ये 5 क्या कर सकते हो आप ऐड स्टेटमेंट अब लास्ट वाला एक ही आइटम पढ़ो देयर वाज एन एक्सेप्शनल isolated purchase not included in the above on April 1 of 100 similar articles which had a cost of 11,000 of these 50 articles were sold on 2nd April for 6,500 not included in the above देखा not included in the above दिया है नहीं तो इसका 5 हाथ बन जाता included होता तो एक और निकल जाता है and the remainder had been included in the cost in the stock taken on April 3rd तो क्या हो गया है आपने 11,000 का क्या किया है परचेज क्या आइसोलेटेड परचेज बराबर है 11,000 का परचेज है कब 1 अप्रैल अब 11 में से आधा आपने भले ही 6,500 में बेचा लेकिन उसका कॉस्ट तो 5,500 है ना तो ये परचेज और सेल दोनों हो गया है फर्स्ट और इसके बीच में थर्ड के बीच में So this 5,500 this was the purchase and this has been sold on 2nd April बराबर है तो ये क्या करना है 5.5 ये खरीदा भी और तो जैसे पता है परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न दोनों करते हो प्लस माइनस तो ये भी वही करना है परचेज माइनस कर दो लेस परचेज कितना था 5,500 अब नॉर्मल क्या आइसोलेटेड परचेज था आइसोलेटेड परचेज प्लस माइनस 5,500 और प्लस सेल ऑफ आइसोलेटेड गुड्स एक मिनट 5,500 बताता हूँ वापस एक मिनट ये वाले का 5.5 का क्या सीन है खरीदा भी और बेचा भी बराबर है और बाकी का 5.5 खरीदा है लेकिन बेचा नहीं है तो ये परचेज ही हुआ 5.5 नॉर्मल खाली परचेज में जाएगा तो आर यू द ओनर ऑन योर एंड नो आर द गुड्स इंक्लूडेड इन स्टॉक दिया है यस तो ये क्या हो जाएगा माइनस तो माइनस इधर आप लिख सकते हो 11 -11 और प्लस 5,500 भी नो इफेक्ट आना चाहिए
नो इफेक्ट ही है, मतलब नो इफेक्ट इन व्हाट सेंस? नोट में नहीं, मैं वही आपको बता रहा था, वो दो विंडो के बीच में अगर माल आया और गया, दो विंडो के बीच में, दो विंडो मतलब फर्स्ट और थर्ड के बीच में माल आया और गया, परचेज परचेज रिटर्न, सेल सेल्स रिटर्न, परचेज सेल, तो दिखाने का प्लस माइनस। नो इफेक्ट कब आता है, नोट में कब जाएगा? जब माल भी पड़ा है और ओनरशिप भी है, बीच में आया गया नहीं है, और माल भी नहीं है और ओनरशिप भी नहीं है, तो दो ट्रांजैक्शन हो रहे तो नोट, एक ही ट्रांजैक्शन की वजह से नो इफेक्ट हो रहा है तो परचेज परचेज रिटर्न, सेल सेल्स रिटर्न, सबको दिखाने का प्लस माइनस, उसको नोट में मत डालना। नया दिमाग में नोट का, नोट लिख दो फटाफट। किसका नोट आएगा? 1 2 3 4। ये चारों का क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पड़े हुए हैं, स्टॉक में भी है ओनर भी है, स्टॉक भी नहीं है ओनर भी नहीं। ओके, बना लो और इसका स्टेटमेंट होमवर्क ले लेना। नोट लिख लो फटाफट, नोट लिख लो चारों का और स्टेटमेंट होमवर्क ले लो। दैट्स इट। आंसर क्या बता दो फटाफट? 2,51,000, 2,51,000। Ownership stock as on 31st, 250. Okay, all for the day. 4 लोग।